بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ شہزادے کو اٹھا کر جنگل میں بھاگ رہا ہے اور ایک شیر اس کے پیچھے ہے۔ اچانک شہزادہ نیچے ایک تہہ خانے میں گر جاتا ہے اور شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ دوسری رات پھر وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ انجانی سمت سے ایک تیر آتا ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بادشاہ درد سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن جس شخص نے تیر چلایا ہوتا ہے اس پر غصہ کرنے کے بجائے اسے پیار آتا ہے۔ اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ صبح نجومی کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتائیے میرے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ نجومی اپنی کتاب کھولتا ہے اور علم نجوم کے حساب سے خواب کی تعبیر دیکھنے لگتا ہے۔ جب نجومی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ وہ بار بار کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب کافی دیر گزر جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا تو بادشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، جلدی بتائیے ہمارے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ نجومی عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ نہ ہی سنے تو اچھا ہے۔ مگر بادشاہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وہ اسے خواب کی تعبیر بتائے۔ آخرکار نجومی کہتا ہے، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا، اور اگر وہ شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ میں یہ منحوس بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ بادشاہ نے کہا، شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ بادشاہ ذرا سخت لہجے میں اس کو حکم دیتا ہے۔ نجومی بولتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر میں نے وہ سب کچھ بتا دیا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میری جان لے لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہرگز نہیں، تم جو بھی کہو گے میں صبر سے سنوں گا۔ بہت اچھا حضور۔ پھر نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر شہزادہ شیر کا نوالا بننے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے چپ سادھ لی، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد بولا، کچھ بھی ہو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اپنی بد نصیبی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک جگہ تلاش کی جہاں انسان اور حیوان کسی کا گزر نہ ہو۔ اس جگہ اس نے پہاڑ کے اندر ایک تہہ خانہ بنوایا۔ اس تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس دروازے کو درختوں اور خاردار جھاڑیوں سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جب تہہ خانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر بامشکل 2 برس تھی۔ ایک آیا بھی اس کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھی۔ بادشاہ مہینے میں ایک آدھ بار اس تہہ خانے میں جاتا، شہزادے کو گود میں لے کر پیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پھر ٹھنڈی آب بھر کر شہزادہ آیا کو دیتا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور غمزدہ دل کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا۔ جب شہزادہ 6 برس کا ہو گیا تو ایک روز کچھ شکاری ایک شیر کے پیچھے ادھر آ نکلے۔ وہ لوگ شیر کو پکڑنا چاہتے تھے۔ شیر دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی شیر تہہ خانے کے دروازے پر پڑی جھاڑیوں پر پہنچا، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے وہ دروازہ توڑ کر نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی شیر کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ شدید زخمی ہو کر نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آیا اس کو بچانے کے لیے آئی تو بپھرے ہوئے شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور آیا کو ہلاک کر دیا۔ اسی دوران شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تہہ خانے کے پاس آ پہنچے۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تہہ خانے میں شیر موجود تھا۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ شیر کو جان سے مار دیا۔ پھر انہوں نے رسی کی سیڑھی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تہہ خانے میں اتر گئے۔
यहाँ की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत हैरान हुए। इसमें कई कमरे थे, हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। अचानक इनकी नज़र इस औरत पर पड़ी जो मर चुकी थी, मगर बच्चा अभी भी सांस ले रहा था। सामान के साथ बच्चे को भी अपने साथ ले गए। इस तरह 6 वर्ष का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ियों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ इसने यहाँ घोड़सवारी, तीरंदाजी और जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। वो बाज़ औक़ात काफिलों पर हमला करके इनको लूट लेते थे। इन सब कामों में बादशाह का बेटा इनके साथ होता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी इन जैसा जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और किसका बेटा है। वो शिकारियों में शिकारी और लुटेरों में लुटेरा था। एक दिन शहजादा और इसके साथियों ने एक काफिले पर हमला किया। इस वक्त शहजादे की उम्र 20 बरस हो चुकी थी। काफिला भी हथियारों से लैस था। काफिले वालों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया। खूनरेज जंग हुई। शहजादा जख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इसे होश आया तो इसने खुद को तन्हा पाया। काफिले का कोई नामो निशान ना था और इसके साथी भी नजर ना आते थे। इसने सोचा, क्या वो मारे गए थे? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। इसके जख्मों से खून बह रहा था। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई नजर न आया। आखिरकार वो हिम्मत करके इस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो अपने साथियों के साथ आया था। इसका ख्याल था कि इस तरह शायद वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि इसे एक शख्स मिला जो खजाने की खोज लगा रहा था। खोजी ने शहजादे को रोककर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शहजादे ने जवाब दिया, मैं इब्ने इब्राहिम हूँ, और अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। खोजी ने खुश होकर कहा, ओ फिर तो तुम मेरे काम के आदमी हो। आओ मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजानों का खोज लगाएंगे। शहजादा इसके खेमे में पहुंचा। इसी खेमे में इन दोनों ने कुछ दिन कयाम किया। दोनों खजाने की खोज में गधों पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। खोजी आगे आगे था क्योंकि यही इन रास्तों से वाकिफ था। आखिरकार एक जगह पर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला। जब इसे तसल्ली हो गई कि वो ठीक जगह पर पहुंच चुका है तो इसने एक छतरी निकाली और जमीन पर गाड़ दी। फिर दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू किया। अचानक इनकी कुदालें एक पत्थर से जा टकराई। ये पत्थर एक बहुत ही बड़ी चक्की की मानिंद था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया तो नीचे एक गार नजर आई। खोजी ने एक मजबूत रस्से के साथ शहजादे की कमर कसकर बांध दी और मोमबत्ती जलाकर इसके हाथ में थमाई और कहा कि गार में उतर जाओ। मैं रस्से को धीरे धीरे ढील देता हूँ। जब तुम तय खाने में पहुंच जाओ तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि गार के तय खाने में इतना सोना है कि अगर हमने 10-12 टोकरियां भी निकाल ली तो सारी उम्र किसी शय की जरूरत नहीं रहेगी। शहजादा तहखाने में उतरा तो खौफ के मारे इसका दम निकल रहा था। नीचे पांव लगते ही इसने सोने को महसूस किया। इसने देखा तो सारी जगह सोने से भरी हुई थी। शहजादे ने जोर से कहा, सोना है। इसी वक्त ऊपर से रस्से में बनी हुई टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। पांचवी टोकरी ऊपर जाकर वापस न आई। शहजादा कुछ देर इंतजार करता रहा। अचानक गिड़गड़ाहट की आवाज आई। खोजी ने गार का मुंह बंद कर दिया था। इसने सोना गधे पर लादा और शहजादे को अंदर छोड़कर रवाना हो गया। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बहुत दुख हुआ, फिर अंधेरे में खुदा को याद किया और एक जानिब चलना शुरू हो गया। ये रास्ता इतना तंग था कि कोई भी आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से गुजरकर वो ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके बारे में इसे कुछ मालूम ना था। फिर इसे अपने सामने मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो इसी रास्ते पर चलता गया। थोड़ी ही देर के बाद वो सुरंग से होता हुआ गार के दूसरे किनारे पर पहुंच चुका था और अब वो एक खूबसूरत वादी का नजारा कर रहा था।
वहां पहुंचकर शहजादे पर सूरज की गर्मी की किरणें पड़ी तो इसे कुछ होश आया। इसे ज्यादा चलना नहीं पड़ा कि थोड़े फासले पर इसे चंद खैमे नजर आए। खैमे में रहने वाले लोग शहजादे को अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने इन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में इसका कोई नहीं, तो इन्हें शहजादे पर रहम आ गया। उन्होंने इसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाजत भी दे दी। ये लोग काफलों को लूटकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। ये शहर से बाहर घात लगाकर बैठे रहते। जैसे ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता, ये बाहर निकलते और इसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादा जल्द ही इनके साथ घुल मिल गया। कई हफ्ते गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरखास्त की कि हमें डाकुओं की लूट-मार से बचाया जाए। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लूटे शहर में दाखिल होता होगा। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने-पीने की अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बादशाह को जब ये खबर मिली तो इसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। तकरीबन 15 मील का सफर तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और अचानक इन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन चूंकि डाकुओं की तादाद बहुत कम थी, शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादे ने जब ये देखा कि इसके साथी बेबस हो रहे हैं, तो चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। तीर बादशाह के सीने में जा लगा। शाही फौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने जख्म की कोई परवाह न की और वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर सीने का जख्म इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद न रही। कई दिन गुजर गए। आखिरकार तबीबों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। वो इसे नहीं बचा सकते। इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा कि तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलिजा, नजूमी ने जवाब दिया। और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहां आया और शेर की लाशों के सिवा कुछ ना मिला था। जी आलिजा, नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया। तो फिर ए नजूमी, मेरे बेटे को खुदा ने शेर के पंजे से बचा लिया है और ये नौजवान वही होना चाहिए, मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि इन डाकुओं में से ही एक मेरा बेटा है? हजूर का बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के इस गुरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को इसके सामने लाया जाए। जब कैदियों को लाया गया तो बादशाह ने इनसे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये नौजवान चंद ही हफ्ते पहले हमारे ग्रोह में शामिल हुआ था। हम में से इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। बादशाह ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? नौजवान ने जवाब दिया, मुझे इब्ने इब्राहिम कहते हैं। यही मेरा नाम है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि मैं जब बच्चा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन वहां एक शेर आ गया। इसने हम दोनों पर हमला किया। मेरी आया मर गई और मैं जख्मी हो गया। बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने इसकी परवरिश की। वो जख्मी हुआ तो किस तरह खजानों के खोजी ने इसकी देखभाल की और फिर इसे एक गार में उतारा और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर किस तरह वो गार से निकला और फिर डाकुओं के ग्रोह में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाने के बाद नौजवान शहजादे ने बादशाह से दरखास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आज़ाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। बादशाह की आंखों में आंसू थे और दर्द भरे लहजे से बादशाह ने कहा, यही मेरा बेटा है। फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया कि अगर ये कसम खाते हैं कि आइंदा लूट मार नहीं करेंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाए।
इसके बाद बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, खुदा ने जो किस्मत में लिख दिया है वो पूरा होकर रहेगा। तख्तो ताज का मालिक मेरा बेटा है। ये कहकर इसने पास खड़े हैरान और परेशान शहजादे को गले लगाया, फिर सर पर ताज रख दिया और फिर ऐसा लेटा जैसे बहुत थक गया हो। बादशाह के चेहरे पर बहुत अजीब मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटा बाप से कुछ कहता, मोहब्बत से देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।